के लिए तैयार हैं, जगह वो अपना हैंड्स अप कर लें। स्टूडेंट्स, today's topic is towards Srinagar on page number 127, which is part of your chapter high up a shelter so high. है ना? So those who are ready to read, raise your hands and let me see your face. शिवांगी यादव, unmute कर लो. Yes, sir. Okay, start reading towards Srinagar. Have you written the question? Yes, sir. Okay, I will check if you are sending me the answer or not. मैं देखूंगा Okay, कितने sir. लोग मुझे आंसर्स भेज गए हैं. Okay, sir. ओके, चलिए. Towards Srinagar, I Not spent towers. Not towards. What is it? Towards. Towards. What will you pronounce? towards Yes. And what do you mean by towards? Towards. की तरफ. किसी चीज की तरफ. है ना? Towards the school. स्कूल की तरफ. Towards the river. नदी की तरफ. है ना? towards Srinagar. Towards Srinagar. क्या लिखा हुआ है? Look at the topic. Towards Srinagar. तो किस तरफ हम लोग चल रहे हैं? Towards श्रीनगर. तो अब हमारी यात्रा कहाँ हो गई है? श्रीनगर की तरफ. Now we are moving towards श्रीनगर. I spent किसके साथ हम अपनी यात्रा कर रहे हैं? Gaugav Jani. Yes, with Gaugav Jani. Now we are going to move towards श्रीनगर. Gaugav Jani के साथ अब हम श्रीनगर की तरफ यात्रा करने वाले हैं. We are going to move towards Srinagar. I spent a few days with the Changpas, but sadly it was time to move on. My return journey would take me away from this special part of the world towards towns which looked like a totally different world. This time I took a different route from Leh. I was going towards Srinagar via Kargil. I saw Via what? Kargil. Via. Via. I saw many more amazing buildings and different houses. I stayed in Srinagar for a few days. I was amazed by the houses there. They took my heart away. Some houses are on the mountains, while some are on water. I took many pictures of these. See my photo album P128. P refers to page. P refers to page number 128. So here on page number 128, you will see different types of houses. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Look at this page. Those who do not have their books, जिनके पास बुक्स नहीं है वो भी देख लें एक बार किस तरह के घर हैं यहाँ पर, है ना? Can you see? There are different types of patterns also for decorations. डेकोरेशन के लिए अलग तरह के पैटर्न्स भी यूज किए गए यहाँ पर, है ना? यहाँ देखिए हाउस विथ बालकनीज, है ना? ये हाउस बोट है. ये झीलों में बने हुए कुछ घर हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना? चलिए. Now. Houses of Srinagar, my photo album. Tourists who come to Srinagar love to stay in houseboats. Houseboats can be as long as 80 feet and around 8 to 9 feet wide. Yes. Many families in Srinagar live in a donga. These boats can be seen in Dal Lake and Jhelum River. Inside the donga is just like a house with different rooms. Beautiful carving on wood can be seen on the ceiling of houseboats and some big houses. This design is called Khatamband, which has a pattern that looks like that look like jigsaw puzzle. jigsaw.
In village of Kashmir, houses are made from stones cut and kept one on top of the other and coated with mud. Wood is also used. Houses have sloping roofs. Yes. Some old houses have a special type of window which come out to the wall. Hmm. This is called dab. It has This is called dab. Hmm. uh, Yes. it is wonderful to sit here and enjoy the view. हाँ. The old houses here are made of stone, bricks, and wood. The Hmm. doors and windows have a beautiful arch Arcs. mehrab. Mega. mehrab. ठीक है, चलिए. तो let us see it once again. I am going to explain this part of the chapter which you learned just now, which you get just now. अभी अभी आपने जो पार्ट पढ़ा है चैप्टर का टुवर्ड्स श्रीनगर, मैं इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेटा. सो लिसन इट केयरफुली. ओके. आई स्पेंट अ फ्यू डेज विद द चांगपास. अब गौगो जानी यहाँ क्या कहते हैं? ही स्पेंट अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक तो वो चांगपा लोगों के साथ रहे. एंड हु वाज द फ्रेंड at whose house he stood? So, Namgyal. नामग्याल. यस. तो नामग्याल के साथ वो गए, आप जानते भी हो. बट सैडली इट वाज टाइम टू मूव ऑन. लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतनी अच्छी जगह से अब वहाँ चलने का समय हो गया है. इट इज टाइम टू मूव ऑन. वहां से अब आगे जाना पड़ेगा, है ना. अब रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगी. ओके. So my return journey would take me away from this special part of the world. अब दुनिया के सबसे ऊंचे निवास स्थान तक पहुंचने के बाद अब वापस लौटना है. 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो चांगपा लोग रहते हैं, वहां उन लोगों के साथ कुछ समय बिताने के बाद अब गौरव जानी को वापस मुंबई लौटना है. लेकिन मुंबई लौटने के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है. उसी रास्ते से वो नहीं लौटेंगे, है ना, ताकि वो ज्यादा चीजों को देख सकें. ओके. सो माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और गौरव जानी क्या कहते हैं कि उनकी जो रिटर्न जर्नी है, जो वापसी की यात्रा है, इस यात्रा से वो इस जगह से अलग होने वाले हैं, है ना. एंड my return journey would take me away from the special part of the world towards town which looked like a totally different world. और ये यात्रा किस तरफ होने वाली है? ऐसे नगरों की तरफ जो दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं. They are totally different from Mumbai and Delhi. Okay. This time I took a different route from Leh. और इस बार वापस लौटते समय लेह से मैंने एक दूसरा रास्ता चुना. आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर वाया कारगिल. और इस बार लौटने के लिए मैंने श्रीनगर से होकर जाने का रास्ता तय किया, जो कारगिल से होकर जाता था. आप लोगों ने भी कारगिल का नाम सुना होगा. हाँ. तो उसी कारगिल से होते हुए ये श्रीनगर पहुंचे, लेह से. ठीक है. I saw many more amazing buildings and different houses. और रास्ते में इन्होंने बहुत से आश्चर्यजनक, स्तब्ध कर देने वाले अलग अलग तरह के घर देखे. ओके. आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज. अब गौरव जानी वहां से वापस लौटते समय श्रीनगर में कुछ दिनों तक रुके भी हैं. आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेज देयर. और गौरव जानी कहते हैं कि वहां जो घर उन्होंने देखे, जो हाउसेस देखे, उनसे वो बड़े प्रभावित हुए. He was amazed, he was surprised after seeing the houses in Srinagar. They were totally different from the houses in Mumbai and Delhi and in our district also. Okay. Yes. They took my heart away. और वो घर इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरा दिल अपने पास रख लिया. They took my heart away. मुझसे मेरा दिल दूर लेकर के चले गए. मेरा मन वहीं रह गया. मैं श्रीनगर से चला आया, लेकिन मेरा मन श्रीनगर में ही रह गया, है ना. Some houses
are on the mountains. Some houses are on the mountains. कुछ घर कहाँ है? पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं. While some are on water. और कुछ पानी के अंदर. Yes. Have you ever seen houses in water, in rivers, in lakes? In our region, it is not possible to see. But in Srinagar, Yes. but in a place like Srinagar, you may see houses in lakes also. है ना? वहाँ पहाड़ तो है ही है, पहाड़ों में तो घर होना नेचुरल है. हाँ, तो वहाँ कुछ घर जो है पानी में भी, झील में भी बने हुए हैं. ठीक है? Some houses are on the mountains while some are on water. I took many pictures of these. और इन घरों की मैंने बहुत सी तस्वीरें ली. You can see some pictures in my album which are printed on page number 128. तो पेज नंबर 128 पर जो कुछ पिक्चर्स हैं वो आप देख सकते हो. आपकी बुक में भी दी हुई है ये, है ना? You can see different pictures taken by him, taken by the Gaurav Jani. Pictures of different types of houses you can see, है ना? Can you see students? Variety of houses. जो पहली पिक्चर है ये किस चीज की पिक्चर है? किस तरह के घर की पिक्चर है? Let me read it. Okay. Tourists who come to Srinagar love to stay in houseboats. जो भी टूरिस्ट, जो भी यात्री घूमने के लिए आते हैं श्रीनगर में, वो हाउस बोट्स पे रहना बहुत पसंद करते हैं. हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 feet एंड अराउंड 8 to 9 feet वाइड. तो हाउस बोट्स की लेंथ और विड्थ कितनी हो सकती है? इट मे बी अप टू 80 feet लॉन्ग. कैन यू इमेजिन हाउ लॉन्ग इज 80 feet? 80 feet कितना लंबा हो सकता है ना? Yes, 80 to 90 feet. Length of the houseboat is up to 80 to 90 feet. है ना? Length. अब आप समझ लीजिए, जो मेरी हाइट जो है ये बिलो 6 feet है, 6 feet से कम. Yes. है ना? अब मुझसे कितने टाइम्स इसकी लेंथ ज्यादा हो सकती है? डिवाइडेड बाई 90. अगर मेरी हाइट मैक्सिमम आप 6 feet भी मान लो, तो 6 से आप डिवाइड करो. 6 1 जा 6, 3 0 15, 6 5 जा 30. यानी 15 टाइम्स, एटलीस्ट 15 टाइम्स लॉन्गर देन माई हाइट. है ना? कम से कम 15 टाइम्स. ओके स्टूडेंट्स, तो इनकी लेंथ कम नहीं है. और इनकी विड्थ कितनी है? 8 to 9 feet. एक नॉर्मल आपका कमरा हो सकता है इतना बड़ा, है ना? चलिए, तो ये हाउस बोट्स हैं और श्रीनगर में आने वाले मैक्सिमम टूरिस्ट हाउस बोट्स में रहना पसंद करते हैं. ओके, हाउस ऑन बोट्स, नाव में बने हुए घर जो झीलों में तैरते रहते हैं. यस, बोट्स हम किसको कहते हैं? नाव को ही कहते हैं. हाँ, और उसी में ये घर बने हुए हैं, है ना? अब देखिए एक दूसरे तरह का घर, डोंगा. डोंगा किसे कहते हैं? मेनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन डोंगा. श्रीनगर में बहुत से परिवार डोंगा में रहते हैं. यस, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हाउस. दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर. ये आप डोंगा की पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर. Here is डोंगा. इट इज वेरी क्लियर. एक ही है ना यहाँ पर, और काफी बड़ी भी है. आप क्लियर पिक्चर इसकी देख सकते हो. हाँ, एक नाव पे ही बना हुआ ये भी एक घर है. और सॉरी, श्रीनगर में बहुत से लोग डोंगा में रहते हैं. और ये डोंगा मैक्सिमम कहाँ पाई जाती हैं? इन डल लेक एंड झेलम रिवर. लेक एंड रिवर. ओके, झेलम जो नदी है और डल जो लेक है, इन दोनों में लोग अपनी अपनी डोंगा में रहते हैं.
From inside, the donga is just like a house with different rooms. और आप डोंगा के किसी भी डोंगा के अंदर चले जाओ तो ये अंदर से आपको वैसा ही घर दिखाई देगा जिसमें अलग अलग कमरे बने होते हैं. A house with different rooms. Okay. So it is not as big as a houseboat. It is smaller in comparison of houseboat, but it also has many rooms, like a small house, which you use for your personal use. हाँ. और किस नदी में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं? किस लेक में और किस नदी में? Dal Lake Lake and Jhelum. and Jhelum River. डल लेक एंड झेलम रिवर में डोंगा आपको ज्यादा दिखाई देती हैं. ओके. Yes, sir. हाँ. एंड व्हाट इज डोंगा? इट्स आल्सो अ बोट विद डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस, है ना. चलिए, लुक एट द थर्ड पिक्चर बेटा. जरा तीसरी पिक्चर को देखो. यू विल सी अ पैटर्न हियर. कैन यू सी दिस पैटर्न? Yes, sir. अ जिग-जैग, Yes. है ना, टेढ़ा मेढ़ा कुछ पैटर्न बना हुआ है. ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट्स. जब जो हाउस बोट्स होती हैं उनकी छतों पर अंदर की तरफ जो सीलिंग होती है वहां पर इस तरह के पैटर्न्स बना करके उनको डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है. तो सच टाइप ऑफ पैटर्न्स आर यूज्ड टू डेकोरेट द सीलिंग ऑफ हाउस बोट्स. ओके. एंड सम बिग हाउसेस. और कुछ बड़े घरों में भी इस तरह के पैटर्न बनाए जाते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए. दिस डिजाइन इज कॉल्ड खत्म बंद. और इस पैटर्न में बने हुए डिजाइन को हम क्या कहते हैं? खत्म बंद. खत्म और बंद, है ना. खत्म भी हो गया, बंद भी हो गया. ठीक है. विच हैज अ पैटर्न दैट लुक लाइक अ जिगसॉ पजल. और इस खत्म बंद डिजाइन का पैटर्न कैसा होता है? जिगसॉ पजल जैसा, जो आप देख सकते हो, है ना. Yes, sir. हाँ. नाउ लुक एट द फोर्थ पिक्चर. हियर इज इट. ये आपकी फोर्थ पिक्चर जो है आपकी बुक में. आई होप यू ऑल कैन सी, है ना. Yes, sir. About this picture, let us see what is it. In village of Kashmir, houses are made from stones, cut and kept one on top of the other. तो कश्मीर में घर कैसे बनाए जाते हैं? पत्थरों को काट दिया जाता है और उनको एक के ऊपर एक रख दिया जाता है. Stones are kept one after one on another. एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रख करके बनाया जाता है. Do you remember the house of that child? बच्चे का घर याद है आपको? जिसके साथ बाबा जानी उसके घर गए थे? Yes, sir. क्या नाम Naam था Gyal. बच्चे का? ताशी. Naam Gyal. ताशी. Oh, ताशी के घर हम गए थे, याद है आपको? yes, sir. वो घर किस चीज से बना हुआ था? स्टोन, लाइम, वुड, है ना. और सर ग्राउंड फ्लोर कैसा था? विदाउट विंडो, है ना. तो कश्मीर में कुछ घर जो है पत्थरों से भी बनाए जाते हैं जिनको एक के ऊपर एक रख दिया जाता है. एंड कोटेड विद मड. और उनके ऊपर एक मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती है. उनके ऊपर मड की कोटिंग कर दी जाती है. एंड वुड इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक सच टाइप ऑफ हाउसेज. ऐसे घरों को बनाने के लिए लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है. द हाउस हैविंग स्लोप रूफ. और इनकी जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? उनमें स्लोप होता है ना. इस तरह का ढलान होती है, उनमें स्लोप होता है. कैन यू गेस व्हाई दे यूज स्लोपिंग रूफ? उनके रूफ फ्लैट क्यों नहीं होते हैं? कैन यू गेस स्टूडेंट्स? ताकि जो बारिश हो, जो बर्फ पड़े, वो छतों पर जम ना जाए, वो नीचे फिसल जाए, स्लिप हो जाए, है ना. वो वहां इकट्ठी ना हो. ओके. तो हमारे जो घर बनते हैं डिफरेंट रीजन में, वो हमारे इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होते हैं.
जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, वहां लोग अपने घरों की छतें कैसी बनाते हैं? स्लोपिंग रूफ। Roof. हाँ, Sloping बनाते पानी इकट्ठा ना हो, बर्फ वहां इकट्ठी ना हो, ठीक है। yes हाँ, और हमारे यहाँ लोग स्लोपिंग रूफ का यूज क्यों नहीं करते हैं? सर Because there क्योंकि is हम no, लोग के we do not get much higher rainfall. हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, और हम फ्लैट रूफ का यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पज के लिए, वहां रहने के लिए या फिर चीजों को सुखाने के लिए, है ना। जैसे कि yes ताशी अपने घर को यूज करता था, उसका रूफ कैसा था? वॉज इट ऑल्सो फ्लैट और no स्लोपिंग? ताशी के छत की sir रूफ कैसी थी? फ्लैट थी ना। उस पे वो लोग क्या सुखाते थे? क्या क्या चीजें सुखाया करते थे? काउडंग केक, पैडी, चिलीज, ये सारी चीजें थी ना वहां पर। हाँ, चलिए। So in village of Kashmir, houses are made from stones cut and kept on the top of the other stones, and they are coated with mud. Wood is also used in building these houses, and the house have sloping roofs. और इनकी छतें ढलान वाली होती हैं, स्लोप वाली होती हैं. Now look at the next picture. Can you see this beautiful pattern? Can you see beautiful pattern in this building? I hope you all can see. Okay, let us see what is written here. Some old houses have a special type of window. कुछ पुराने घरों में विशेष तरह की खिड़कियां बनी होती हैं. There are some special windows in some old houses which comes out of the wall, जो घर की दीवार से बाहर निकली होती हैं, like balconies. Okay, this is called the dab, और उसको हम क्या कहते हैं? Dab, D-A-B, dab. So what are dab? These are the special type of windows, है ना, which are projected out of the walls, जिनको हम दीवार से बाहर निकला हुआ देख सकते हैं घरों में, बिल्डिंग्स में, है ना. इट इज ब्यूटीफुल वुड पैटर्न, और ये लकड़ी की बनी हुई सुंदर खिड़कियां होती हैं जिनको सजाया जाता है लकड़ी के ऊपर नक्काशी करके. इट इज वंडरफुल टू सिट हियर एंड एंजॉय द व्यू. आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप डैब के ऊपर बैठकर बाहर का व्यू देखो. ओके, सो दिस वाज द डैब, and now look at the next house. It's just like an old building which you can see here in the last picture. And now look at it. What is it? The old houses here are made of stone. यहाँ भी पुराने घरों को पत्थरों से बनाया गया है, bricks and wood, और इनको बनाने में bricks का और wood का भी इस्तेमाल किया गया है. The doors and windows have beautiful arcs, और इनकी स्पेशलिटी क्या है? इनके आर्क. आर्क हम किसे कहते हैं? जो हाफ सर्कल होते हैं, है ना. मेहराब भी हम इनको कहते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पर इनके दरवाजों के ऊपर सेमी सर्कल पार्ट, आधा जो गोल हिस्सा है, उनको हम क्या कहते हैं? आर्क या मेहराब कहते हैं, है ना. तो आर्क या मेहराब का यूज किया जाता था दरवाजों को, खिड़कियों को डेकोरेट करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, है ना. यू कैन सी इट in the picture also. Okay students, so here we have learned, we have seen the pictures of different types of houses in Srinagar and Kashmir. So if you have any doubt students, you may ask your questions up to this part. Is there any doubt? सर कश्मीर में भी स्लोपिंग रूफ्स बनते हैं और श्रीनगर में भी. हाँ हाँ श्रीनगर में भी स्नो पड़ते हैं. हाँ,
तो जहाँ ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां लोग स्लोपिंग रूफ का ही यूज करते हैं, है ना? Yes, sir. Okay. So anything else? Should we Sir, continue? I have doubt in another chapter. What? Sir, I have doubt in another chapter. Sir, can you send chapter number 9 again? Chapter 9 again. Okay, beta, Yes, if you sir. have any doubt, if you have any problem, leave it, and at the time of revision we will solve your problem, you know. It's not always possible Yes. to send the pending to complete, to send the material of pending work Yes, sir. for everyone, है सर ना? आपने भेजा है सर अपने चैप्टर 9 भेजा है हाँ, मैं रिवीजन पहले भेज चुका हूँ मैं, आप Revision देख नहीं लेना। हुआ है। अगर नहीं भेजा हो तो हम Sir, दोबारा जब मैं- करेंगे तो हम देख लेंगे उसको, हम कर लेंगे, है ना? Yes, sir. Don't be worried about that, है ना? Whatever is left, leave it as it is. We will cover it in our next revision work. But whatever is going on in our class, you should not lose that part. You should do at least, you should complete at least that part of your study, है ना? तो कम से कम जो अभी काम चल रहा है वहां आप पीछे मत रहो, आज का काम आप पूरा रखो, पीछे का जो कुछ भी पेंडिंग है वो रिवीजन के टाइम आप कर सकते हो कंप्लीट। ओके सर मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि आपने भेजा रिवीजन में करवा के चैप्टर 9 रिवीजन में चैप्टर का रिवीजन हम लोग किया है ना? सर हाँ? मेरे मोबाइल में नहीं आया था, आपने भेजा था तो। अगर भेजूंगा तो मैं सभी के मोबाइल पे जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक के मोबाइल पे जाएगा एक के मोबाइल पे नहीं जाएगा। Up you go. Okay, we have not done revision of this I think this chapter, इस चैप्टर का हम लोग शायद रिवीजन नहीं किया अभी। ओके No, sir. आपके पास चला जाएगा। And No, sir. 6 तक ही है। हाँ, now start getting the next paragraph, जल्दी कीजिए फिर हम लोग का टाइम भी ओवर होने वाला है। Who will read? Okay, सर Who will read now? आयुष प्रताप, अनम्यूट कर लो बेटा अपने आप को। सर अनुष्का यादव। आयुष Sir. अनम्यूट कर लो बेटा। Yes, sir. हाँ, स्टार्ट रीडिंग। Yes. Sir. When I strapped my gunnery, I अच्छा, had पेज नंबर not 129, when I started my journey। When I started my So journey. वैसे that in one state I would see so many different kind of houses and lifestyles। I had a lifestyle. हाँ, lifestyle। Lifestyle means way of living, Yes, sir. जीवन जीने का तरीका। Yes, sir. I had a wonderful. So what is this? Experience, So what is this? experience, Experience. अनुभव। Ah. Experience. हाँ? Experience of living on the mountain in Lee and other of living on water and yes in so what I is it? saw Srinagar. how both the houses in I these saw- areas were made to suit the climate. Okay, students, let me Both explain it. houses- Listen, Yes. our class is also going to work. When I started my journey, जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses. Okay, तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक ही राज्य में इतने तरह के घर मुझे देखने को मिलेंगे, जिनकी पिक्चर हम लोगों ने अभी अभी देखी है ना? I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another living in the water in Srinagar. और मुझे जीवन जीने का बड़ा अनुभव मिला, अच्छा अनुभव मिला लेह में, वहाँ लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, और श्रीनगर में झीलों में हाउस बोट में Excuse me, अपना sir. कैसे बिताते हैं ये लोग। Excuse me, sir. I saw how both the houses in these areas were made to suit the climate. और मैंने ये भी अनुभव किया कि किस तरह से लोग
वहाँ की क्लाइमेट के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार अपने घरों का निर्माण करते हैं। जहाँ बहुत ज्यादा बरसात होती है, बारिश होती है, वहाँ लोग स्लोपिंग रूफ का यूज करते हैं। Yes, sir. थैंक्स स्टूडेंट्स। Excuse me, sir. Going to work and बनाया नहीं है, बना लीजिए। Okay, students. हाँ, students, I am going to send you link for attendance. Mark your Yes, sir. attendance and send it as soon as possible. Hurry up. हाँ, स्टूडेंट्स, आप लोग सुन रहे हो? Yes, sir. हाँ, आप लोगों के पास अटेंडेंस का लिंक Yes, आ रहा है? sir. Yes. हाँ, yes, send your attendance. नहीं हुआ।